So hi, Jiganshu this side and I am live. Let me see how many of you have joined me. Well, hi Avi, how are you? Hi Manisha, how are you? Happy Independence Day. Hi engaging authors. Well, I have joined live because today is a giveaway which I want to pursue because I really want to come live and I miss all you guys. Hi Sakshi. Hi Ankita Singla. I can see you all. Hi Manisha. Hello. So well, August is always my favorite month because एक तो अपना देश आज़ाद हुआ था यार, and of course today is my birthday. Yeah. And I know you're gonna wish me thanks a lot in advance. And it's my favorite month. What can I say? Hello, Buksa Dope. Hi, Shweta. Your question is fabulous. I'm gonna answer every question of yours. Everybody, I really get an overwhelming response, guys. And I'm so happy that today I'm live and I'm celebrating my birthday with you all. Hi, Bilal. Hi, how are you? So, अपना Q&A start करें? चलो, give me a second. चलिए, thanks Shweta from Books Are Dope for wishing me happy birthday. Thanks Manisha. Hi Shashi. So my own house people are a little late in joining me. Well, anyways, चलो अपना Q&A start करते हैं without waiting. So I got first question from DJ Janvi. Thanks DJ Janvi for taking your time and giving me this opportunity to answer your question. And DJ Janvi, your question is, how many hours in a day do you spend to finish a book? Well, Janvi, I generally write for 1 or 2.5 an hour daily, and it take me about it take me 3 or 4 months to finish a book. And the next question is from Shashi23. He asked which subject be selected in case somebody wants to pursue career in writing. Well, Shashi, I'm an engineering grad turned to a writer, but if somebody wants to take a subject, then it will be advisable if a honors degree or a graduation degree is to be done in that particular subject. Suppose anybody wants to write in Hindi, somebody wants to write in English. तो इट डिपेंड कि आपको कौन सी लैंग्वेज में लिखना है, संस्कृत में लिखना है, उर्दू में लिखना है, मलयाली में लिखना है. तो एक बेसिक लैंग्वेज होना तो बहुत ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, छोटी मोटी मिस्टेक्स अगर होती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, दैट कैन बी रेडिकेटेड थ्रू एडिटोरियल सर्विसेज. एनीवेज a person can take some online classes अगर वो उस एज को पार कर चुका है तो, like he is 25 or 26 and he don't want to go to the college again. So छोटा मोटा अपना ऑनलाइन कोर्स कर लीजिए और अपना कुछ बुक्स पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तो you can of course write beautifully. Hi Prabal, hello, how are you? So Prabal, you joined at a very perfect time. Next question is yours. So book lover Prabal मुझसे पूछते हैं कि how do you deal with emotional impact of a book as you are writing the story? Okay, and writing can be emotionally draining and stressful pursuit. Any tips for the aspiring writers? Well, Prabal, yes, writing is very stressful. जो emotional turmoil we put in a book, we have to अपना दिल निकाल के बाहर रखना पड़ता है. We have to think about different plots. We have to think about lots of things. ये twist डालने, वो turn डालने. Plus we are not just writers. Writers को तो they have to pursue their job also. They have to take care of the home front also. Many are like babysitting their children. So it's very difficult. It's stressful. So for me, I do meditation and exercise. It channel my emotions very well and एक सही direction में डालते हैं. And if you ask me for aspiring writers, तो हाँ, stress है. Chill करो, अच्छा खाओ, अच्छा पढ़ो और खूब अच्छा लिखो और जम के एक्सरसाइज करो. एंड एक्सरसाइज इज लाइक की इंग्रेडिएंट ताकि आप स्ट्रेस से दूर रह सको, अपने इमोशंस को चैनलाइज कर सको. So next question is from a very good friend of mine, Deepak Goyal, who asked, you are an engineer, MBA, banker, poet, author, painter, violinist, foodie, horophile, black belt in Taekwondo, mother, wife, daughter, a very good friend. How you manage all of these in one life? Which one is your favorite? And out of so many passions, tell me one thing you continue to choose as a person. And what will you choose and why? Well, it's a very big question. तो मैं धीरे धीरे जवाब देती हूँ.
तो दीपक मे बी आई थिंक आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू नो मी वेरी वेल, कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ चीज़ों से भी, खाने से भी, लोगों से भी। सो मैं एक ही चीज़ में नहीं रह सकती। आई सीक फॉर चैलेंजेस। मुझे चैलेंज चाहिए, यहाँ भी वहाँ भी, जो भी कुछ नया हो लाइफ में, कुछ तड़का हो यार, बोरिंग नहीं चाहिए। तो आई कीप माई हैंड्स ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज। तो इसमें वायलिन भी है, इसमें ब्लैक, ऑफकोर्स आई एम अ गर्ल, तो इंडिया में रहते हो तो भैया कुछ सेल्फ डिफेंस तो आना चाहिए। सो आई हैव टू गो फॉर ब्लैक बेल्ट फॉर ताइक्वांडो एंड आई लाइक एक्शन मूवीज ऑल ऑफ देम। तो मुझे तो जाना ही था। तो एज फार एज पेंटिंग इज कंसर्न, वो टाइम पास है। तो अगर मैं किसी भी एक रोल में, एक वाइफ, एक मदर, एक फ्रेंड, एक डॉटर, एक सिस्टर में से, ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक ही रोल पसंद करूं। फेवरेट तो अगर कहो कि आई एम अ मदर, तो मैं मदर वाला ही रोल फेवरेट है। बट मैं इसको एक सेंटेंस में कंपाइल करना चाहूंगी। That is like, I want to travel the whole world with my husband and son, and I want to enjoy every cuisine, every dish I want to enjoy. Vegetarian only, I'm a vegetarian. So हर डिश मैं करना चाहती हूँ। और अगर मेरे सन और मेरे हस्बैंड को किसी ने हर्ट किया तो I have my taekwondo skills, right? तो इन सब एक्सपीरियंसेस को जॉल डाउन करके I write my books, which is very much, liked by my friends and family. तो कोई एक रोल नहीं है दीपक जो मेरा फेवरेट हो। And if as far as passion, you ask me which is my favorite passion, तो of course वो writing है, because वो मेरे साथ चलता ही रहता है। कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ नहीं आ जाती हैं, बट एक writing का ऐसा मेरा passion है जो I will like to continue forever and ever and ever. I'm in love with the writing. I hope I have satisfied you with my answers. Well, another question is from Sarla Sharma, who wants to ask, what keeps you going despite all the hurdles like job, full-time mom, family responsibility? एक्चुअली गाइज हुआ ये कि 2-4 मेरे फ्रेंड्स ने या फॉलोअर्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे। क्वेश्चन तो डिफरेंट थे लेकिन उनका आंसर सेम ही था। तो व्हाट आई डू इज, मैं दोनों या तीनों क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ूंगी, लेकिन आंसर उनका एक ही है, क्योंकि रिपीटेशन करने में ना बोरिंग हो जाएगा लाइव सेशन। तो दैट आई डोंट वांट टू डू ना। सो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एडीवी शर्मा. What inspired you to follow your passion since you lost it after schooling and job hunt, as mentioned by you in an interview? Well, both of you, thank you so much for asking this question. Well, my answer is that before a daughter, a mom, a sister, a wife, I am Jignanshu Sharma and I love myself. तो I don't know what is inside me. There is like मेरे soul की sound है, या my heart's whisper, और my mind की instructions हैं जो मुझे they keep on driving me. They keep me on my toes. I can't take rest. I just feel like कि अरे ये तो करना ही है. In fact, I can't sleep properly till I achieve it. शायद इसी को पैशन कहते हैं, जो हमारे अंदर से आवाज आते हैं कि यस तुमको जाना है, तुमको ये करना ही करना है. So I keep on doing that. And another question is my very good talented friend from Gurgaon, and she's Ishita Blooming Eng. Well, she asked me what I learn in this journey, right? And what progress I have seen around me. Well, Ishita, while in this my writing journey, I have learned that only writing good is not enough. You have to market it as well. And from last 5 years, I'm just looking to the scenario कि हो क्या रहा है इस दुनिया में. तो I think जो social media है, उसने बहुत progress किया है. Not just social media. इनफैक्ट जो सिर्फ नॉट जस्ट फॉर राइटर्स, सोशल मीडिया ने प्लेटफॉर्म दिया है फॉर अनदर आर्टिस्ट एज वेल, लाइक एक्टर्स हैं, आपके सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, पेंटर्स हैं, राइटर्स, सबको. तो आई थिंक राइटिंग में भी सोशल मीडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, जिसकी वजह से वी कैन showcase our talent. In fact, I am also doing that. I am making reels and stories and doing giveaways just to showcase my talent. That people will gather and come to find out that I am a writer, and if they like my work, they'll definitely gonna purchase it. So, next question is from Manisha Berwal, my very, very good friend from my college days. And she asked how you manage your motivation and time with the job and family with fitness you are now. Well, Manisha, thank you so much for asking. And there is 2 more questions. One from my lovely sister Preeti Sharma, who asked how you manage your time with passion and profession. And one is from Ankita Singla. And she asked, how can you manage your professional life with personal life with junior? तो ये तीनों क्वेश्चन का मैं एक ही जवाब देना चाहूंगी, जिसमें ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम. ये बहुत प्रिटी लेडीज हैं एंड दे जस्ट गेट टाइम टुडे ऑन एन इंडिपेंडेंस डे एंड coming to my live and watch me live. So thanks Preeti, Ankita and Manisha. So my answer is that I think I'm pro in multitasking.
हो ही जाती हैं शायद लड़कियां, शायद वी आर जस्ट अपब्रिंगिंग लाइक दैट वे. सो माई बॉडी एंड माई ब्रेन इज लाइक इन सो परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद मी ना. एंड प्लस जो मल्टीटास्किंग मैं करती हूँ, प्लस जो टाइम मैनेजमेंट और जो मेरी प्लानिंग हैबिट्स हैं, वो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती हैं. इतना हेल्प करती हैं कि आई ड्राइव मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम एफर्ट्स. प्लस हियर आई वांट टू से कि माय ब्रदर सुधांशु हैव गिफ्टेड मी अ बुक. आई थिंक ही गिफ्टेड मी book 2 or 3 years ago, Thinking Fast Slow by Daniel Kennel. तो वो बहुत अच्छी बुक है. आई सजेस्ट एवरीबडी ऑफ यू टू रीड इट, बिकॉज वो आपको फटाफट काम करना सिखाएगी, जल्दी में थोड़े थोड़े टाइम में ज्यादा काम करना सिखाएगी. तो इसके साथ सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको. सपोज मैं खाना बना रही हूँ घर में, राइट. तो मैं एक हाथ से अगर अपनी कड़छी हिला रही हूँ तो दूसरे हाथ से मैं ड्रॉर खोल के मसाला निकालूंगी. जब तक मसाला डलेगा तब तक मैं अपने नीज से, पैर से उसको ड्रॉर को बंद भी कर दूंगी. इतने में मेरा एक हाथ खाली हुआ, मैं दूसरे हाथ से जो है शुरू कर दूंगी अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट, जो मैंने पहले ही 2-3 दिन पहले ही सेव करके रखी हुई है फॉर मार्केटिंग पर्पज. एंड यस, फिटनेस बहुत जरूरी है मनीषा, बिकॉज वी आर लेडीज एंड वी हैव टू गिव बर्थ टू बेबीज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउस, टेक केयर ऑफ आवर राइटिंग स्किल्स, टेक ऑफ आवर एवरीथिंग. सो व्हाट आई डू इज, मैं अपने 40 to 50% खाने में प्रोटीन रखती हूँ. मेरा बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल है, मेरा बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बिकॉज मुझे दूध भी पसंद है, मुझे घी भी पसंद है, मुझे दही भी पसंद है, मुझे मक्खन भी पसंद है, और पराठे मुझे बहुत पसंद है. तो वो एक्स्ट्रा फैट जो होता है वो मुझे एक्सरसाइज के थ्रू निकालना पड़ता है. तो जो मसल ब्रेक होती है उसको रिप्लेनिश करने के लिए, यस, आई हैव टू ईट प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स, मिनरल्स, ड्राई फ्रूट्स, केला तक भी मैं नहीं छोड़ती, खाना ही पड़ेगा. ये सब करने के बाद भी आई हैव टू टेक कैल्शियम एज अ सप्लीमेंट, मेडिसिन लेनी पड़ती है मुझे. ये सब करने के बाद भी मैं थक जाती हूँ, और थकने के बाद मैं जो है, यस, आई गॉट टायर्ड, मेरे पैर भी दुखते हैं, मेरे को बैक पेन भी होता है. बट थैंक गॉड आई हैव अ वेरी लवली हस्बैंड शशि, जो मुझे संडे को छुट्टी दे देते हैं, जिस दिन मुझे सिर्फ खाना बनाना होता है. मेरा बच्चा वो संभालते हैं. तो एक दिन अगर किसी को बच्चे से फुर्सत मिल जाए, दैट्स हैट्स ऑफ. और उस दिन मैं कुछ लिख भी पाती हूँ अच्छे से, बिकॉज आई एम फ्री ऑन दैट डे. सो दैट्स हाउ वी रोल. इसी तरीके से जो है लाइफ चलती रहती है. नोबडी इज अ सुपर वुमन, सुपर हीरो. हम सब आम आदमी हैं, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ विद फूड, विद राइस. यस, ब्राउन राइस, शशि, यू आर राइट. मैं ब्राउन राइस भी बहुत खाती हूँ और मैं व्हाइट राइस भी बहुत खाती हूँ. सो another question is from Tathastu Yoga, from Pradeep Gautam, and he asked me how you fall in love with writing. Well, Pradeep, fall in writing, it's since from my childhood. My brother Himanshu and Sudhanshu gifted me lots of book and I love reading them. So while reading, eventually I fell in love with writing, कि हाँ मुझे लिखना ही है. If I tell you precisely, it was on 2010 when I left my corporate sector job and jumped into a banking job, जहाँ पे मेरा पैकेज हाफ हो गया, एंड आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज माई शॉपिंग एंड मैनी मोर लग्जरियस थिंग. तो वहां पे मुझे लगा कि हाँ, मुझे राइटिंग से प्यार हो ही गया है, बिकॉज आई एम रेडी टू कॉम्प्रोमाइज नाउ. एंड well, my next question is from Avi the reader. Hi Avinash Malhotra. First of all, I would like to thank, आपने क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, बट ये मेरे दिल को छू गया. तो it is one of my favorite question. Well, the question is, as a child, what did you want to be? Well, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है. अगर मैं अपना इंट्रोस्पेक्ट करूँ और पीछे जाऊं कुछ साल, काफी साल इनफैक्ट, और मैं सोचूं कि जब मैं छोटी थी, एज अ चाइल्ड, what I want to be, you know, what a child is not because what he thinks, it's amalgamation of lots of things, like क्या उसको लेगेसी आगे लेके जाना चाहता है, what kind of tradition he is in his family, क्या उसके पेरेंट्स का इन्फ्लुएंस है, उसके सिबलिंग्स के साथ क्या रिलेशन है, उसके अपने जो लाइफ में कौन से टीवी शोज वो देखता है, DD1 DD2 है, चाचा चौधरी देखता है, क्या देखता है, वो क्या बनना चाहता है, उसके टीचर्स का क्या इन्फ्लुएंस है, उसका पीयर प्रेशर कैसे वो हैंडल करता है. तो ये सब चीजें होती हैं. एंड दिस क्वेश्चन इज स्पेशल टू मी बिकॉज यू नो, इसने मेरी बचपन की जो क्रेजी और इनोसेंट मेमोरीज हैं उनको छू लिया. बेसिक सा क्वेश्चन है, और जैसा हर बच्चे के साथ होता है अविनाश, वैसा ही मेरे साथ हुआ. जब मैं बहुत छोटी थी,
like 6 or 7 year old, I want to be a superhero. तो बट आई कांट बी, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को जो है कोई सुपर पावर ही नहीं थी। मैं सपने देखती थी कोई स्पाइडर आए और मुझे काट ले तो मैं भी स्पाइडर वुमन बन जाऊंगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। इनफैक्ट मुझे स्पाइडर से बहुत डर लगता है। तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स दे वॉन्ट अलाउ मी टू बी अ सुपर हीरो, वाई, बिकॉज द कॉस्ट्यूम इज रियली वियर्ड। नो पेरेंट विल अलाउ देयर चिल्ड्रन टू, भाई अंडरवियर्स को बाहर पहन के आप कॉस्ट्यूम के जो है आसमान में उड़ते फिरो। तो मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं अलाउ करने वाले थे, तो वो काम वहीं की वहीं बंद हो गया। फिर आई ग्रो अप लाइक 10 और 12, और उस वक्त मुझे एकदम पेट्रोटिज्म आ गया मुझ में कि मैंने तो जो है अपना पायलट बनना है और इंडियन एयरफोर्स में जाना है। बट प्रॉब्लम फिर ये हो गई कि सैड, आई कांट डू दैट बिकॉज मेरे को चश्मा लग गया, तो मेरे वो सपने भी बह गए। फिर आफ्टर लाइक आई वाज 19 और 18, आई डोंट नो क्या आया मेरे मन में, मुझे एक्शन सुपर हीरो, एक्शन हीरो बनना था, एक्शन हीरोइन ऑफ कोर्स मतलब। तो मूवीज में जाके ना मुझे वही स्टंट्स एंड ऑल सब करना था। बट माय डैड वेरी स्वीटली मैनिपुलेटेड मी के बेटा लड़कियों को तो ये रोल नहीं मिलते, 1-2 मूवी मिल जाएगी जिसमें तुम एक्शन या स्टंट्स कुछ कर पाओगी, स्टंटमैन तो तुम क्या बनोगी। तो और ऊपर से लड़कियों को तो वो कहते हैं ना कि बर्फ में जो है साड़ी पहना के नचवाते हैं बस। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, सर्दी में कम कपड़े पहनना उतना ही लेथल है मेरे लिए जितना आज इस कोविड के टाइम में बिना मास्क के बाहर जाना। तो हमको लगा भैया हमसे तो ना हो पाएगा, तो हमने वो सपना भी छोड़ दिया। तो इवेंचुअली आई ज्वाइन कॉर्पोरेट सेक्टर आफ्टर माई MBA एंड आई वॉज लाइक कि चलो यार राइटिंग का कीड़ा था ही, तो आई टर्न इनटू अ राइटर। सो इस तरीके से अविनाश मैं अपना करियर के, एक सपना नहीं था, कई सपने थे। आई जस्ट कीप ऑन टचिंग डिफरेंट थिंग्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अंकिता जैन एंड शी आस्क्ड, योर फर्स्ट नोवेल FFYW फ्रेंड्स फॉरएवर या व्हाटएवर इज अ ब्यूटीफुली रिटन रोमांटिक नोवेल, व्हाट इंस्पायर्ड यू फॉर अ मर्डर मिस्ट्री। वेल अंकिता, ये वो क्वेश्चन है गाइज जिसमें मुझे सीरियसली सोचना पड़ा है। 1 या 2 मिनट मुझे लगा है कि इसका जवाब देना, ये भी मेरे वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस में से ही है। और मुझे लग गया था कि यार क्यों जिज्ञांशु, क्यों। आई लव रोमांटिक थिंग्स, मैं वो टिपिकल रोमांटिक लड़की हूं जिसको मूवीज में भी तो दिखाते ही हैं और मेरे साथ रियल लाइफ में भी होता है। फूल बरस रहे हैं, वायलिन बज रहे हैं और म्यूजिक चल रहा है, जब आप अपने जिंदगी के प्यार को देखते हो तो ये सब मेरे साथ हुआ है और आगे भी होता रहेगा। सो रोमांस इज लाइक वेरी इजी टू राइट, वेरी इजी टू एक्सप्रेस फॉर मी। उसमें कुछ नहीं करना होता यार, अपना दिल निकाल के रख दो। सो मैंने पूछा कि जिज्ञांशु क्यों रोमांटिक छोड़ के तुम और भी रोमांटिक स्टोरीज के आइडिया हैं, तुम क्यों नहीं लिख रही हो। तो आई वॉज लाइक यार इजी है रोमांस लिखना। तो सो अंकिता, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड्स ऑन समथिंग चैलेंजिंग। तो मर्डर मिस्ट्री में सिर्फ हर्ट से काम नहीं चलता, माइंड भी लगाना पड़ता है और बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं। आप जब कोई भी मर्डर मिस्ट्री लिखते हो तो बहुत सारे ट्विस्ट हैं, टर्न्स हैं, प्लॉट्स हैं, यू हैव टू बी वेरी क्विक, कोई क्लू ना छूट जाए।
से कोई गलती ना हो जाए जो रीडर पकड़ ले कि अरे यहाँ तो इसने राइटर ने ही गलती कर दी। इनफैक्ट जो थर्ड नॉवल मैं लिख रही हूँ, इट इज अगेंस्ट सोशल इश्यूज जो वुमेन के अगेंस्ट होते हैं इन इंडिया में, उस पर लिख रही हूँ। आई एम अ हार्ड कोर फेमिनिस्ट। औरतों के बारे में बुरा सोचना या सुनना ही बहुत मुश्किल है मेरे लिए, उनके बारे में लिखना। आई मीन जब मैं रोमांस लिखती हूँ तो आई जस्ट लाइक कितनी अच्छी दुनिया है, कितनी खुशियां हैं, सब रंगीन है, सब लाल है, यू नो, पिंक एंड रेड एंड ऑल। बट जब आप ऐसा मर्डर मिस्ट्री लिखते हो या आप कोई सोशल इश्यूज पे लिखते हो वुमेन के अगेंस्ट इन इंडिया में, तो आपको लगते हो शिट मैन, कितने दुख हैं इस दुनिया में। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट समथिंग लाइक दैट। बट आई वॉन्ट बी डिसहार्टनिंग द रीडर्स हु लव रीडिंग रोमांटिक स्टोरीज। मेरी जो 4th बुक है, इट इज यू नो कंप्लीट हार्ड कोर लव स्टोरी। इनफैक्ट मैंने उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग मैंने बनाया है उसको बाय एडिंग स्काई-फाई फैंटेसी, and readers can expect it in the end of 21-21. So don't get disheartened Ankita, you will definitely be getting lots and lots of romantic stories. 5th भी मेरी शायद romantic ही होने वाली है, तो let's see, let's hope for the best. And the last question is from Shweta. Books are dope. From books, yes Shweta, I agree with you, books are dope. ये question भी सुनने में आसान होगा, लेकिन मेरे लिए इसका जवाब देना बहुत मुश्किल था। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। मुश्किल इसीलिए है इसका जवाब देना बिकॉज समहाउ, पहले आप क्वेश्चन सुन लीजिए, राइट। शी वॉन्ट टू आस्क, व्हेन यू रीड अ बुक, अ कैरेक्टर गेन्स योर अटेंशन, you finished reading and finally after completing it, did that character haunts you for days? If yes, then how you overcome it? Well, so I am live on social media और social media पे लोग अपना अच्छा साइड दिखाते हैं, लाइक मेरा ये प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मेरा ये प्रोफाइल बहुत अच्छा नहीं है, मेरा फ्रंट भी ठीक ठाक है, तो चलो मैं ऐसे करके बात करूंगी तो अजीब लगेगा, तो ऐसे ही ठीक है। लेकिन श्वेता समहाउ अब मुझे अपना इनहिबिशन ड्रॉप करके अपनी वीकनेस को बताना ही पड़ेगा कि मैं चाहे ब्लैक बेल्ट हूँ ताइक्वांडो से, लेकिन अंदर से शायद मैं, हाँ अंदर से शायद आई कैन बी वेरी वेरी लाइक वेरी टिमिड, आई एम वेरी शाई, वेरी वेरी सॉफ्ट, वेरी कैलुअस, सॉरी वेरी नॉट वेरी कैलुअस, आई एम वेरी वेरी इमोशनल ह्यूमन बीइंग। आई कांट बी लाइक वेरी रूड टू द थिंग्स लाइक के हाँ भाई आई जो है किसी ने किसी का रेप अगर कर दिया तो सो व्हाट, नो नो नो, इट्स हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, नॉट जस्ट अ कैरेक्टर इन अ बुक श्वेता। इनफैक्ट आई कांट see news because every news, most of the news are bad news, like somebody murdered somebody suicide, somebody did suicide, and there is a rape attempt, and there is, you know, child abuse, there is lots of things which is going on in our society. If I read the news, if I watch the news, it's very difficult for me because it haunts me. Yes, it haunts me from inside. I feel so heartbroken with these news. In fact, when I was writing my 3rd book, I have researched a lot of things, lots of social issues against women. And like in a country like India, you know, Shweta, how things are for women. So yes, they haunt me. In fact, I don't watch series like Sacred Games, like Mirzapur. One of my friend told me that they are very brutal. You can't see. And I was like, right, I can't see because I got nightmares, in fact. So what I do is I skip it, I forward it, or I neglect it. You might be thinking, if I close my eyes, the problem will be solved. And then I know, Shweta, but what if I don't want to change it? I really don't want to change myself. I can't be rude to such kind of things. I can't be callous. I can't be hard-hearted. I am what I am. So what I do is I just close my eyes, and through my writing, I want to send message, a soft and subtle message. If 2 or 3 people will read it and 1 or 2 people will get changed because of this, so I think I'm successful writer. I don't want the hell lot of amount of money, or I don't want a hell lot of amount of followers or fans. I just want that through my books, few people get entertained, and through entertainment, they get a very good lesson. And if I come to your next question, that how I overcome it, well, meditation. There is no way out for an emotional and soft person like me that I have to do meditation daily. I have to do meditation daily, but the thing is that I skip it. I just do it 2 or 3 times a week or so. But exercise I do daily because I have a back problem. So exercise I have to do daily, but meditation is a key. I would suggest meditation to everyone.
that can, you know, channelize your emotion in a perfect way. That is, it is doing it to me. So Shweta, thanks for asking this question, and it helped me to drop my inhibition to come forward on live and accepting my weakness. That's a huge weakness in me, but this is what I am. So guys, the good thing is questions सारे हो गए हैं, and if somebody want to ask anything live, then they can ask me. For we have 1 or 2 minutes that I can answer your question. So anybody want to ask if किसी का कुछ और interest रह गया है तो? Well, I guess everything is cleared now. So as I told you, कि I got 15 questions, and Goyaldeep, I have answered your question to join late. तो चलो मैं आपका बता देती हूँ कि मेरा कोई एक फेवरेट रोल नहीं है, but if you dig deep, then I love to be a mommy, and out of many passions, I love to pursue writing. Baki, I will share this questions, this live session on IGTV. You can watch over there also. Thanks, books are dope. Thanks, Shweta. Yes, I have arranged the question very well, because last 3 questions are my favorite, and my next book will be coming in the end of this year, that is on women empowerment. तो चलो मैं इस लाइव सेशन में उसका टाइटल बता देती हूँ आप लोगों को. द टाइटल ऑफ द बुक इज लव लेडीज एंड सियप्पा, जो कि बहुत है. आई नो इट्स फनी, बट अंदर का थोड़ा चीजें सीरियस है और फनी भी है. ऑफ कोर्स इट्स हिलेरियस, एंड लेसन भी उसमें